Hello students, now in today's lecture of CA we are going to see type. We have already seen what is DMA. हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमारे प्रायर लेक्चर में समझा था कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता क्या है. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट DMA कंट्रोलर. हमने देखा कि DMA कंट्रोलर क्या होता है विच वी कॉल DMAC, राइट. आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ DMA ट्रांसफर्स यूजिंग DMA कंट्रोल. हम देखेंगे कितने तरह के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ DMA ट्रांसफर्स आर देयर यूजिंग DMA कंट्रोलर. So first we'll consider bus transfer. Now what is bus transfer? See, DMA control returns the bus after completing the data transfer. ये कह रहे हैं कि DMA जो होता है ये रिटर्न कर देता है बस को आफ्टर कंप्लीटिंग द डेटा ट्रांसफ़र. हमने देखा था कि DMA में होता क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में होता क्या था. वी हैव रिमूव द CPU एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ DMA controller, right, and they are using bus to transfer the data from peripheral devices to the memory and from memory to the peripheral devices. So this is something we have discussed. Now today we are discussing about types of DMA transfer using DMA controller. अब DMA क्या होता है? After return, DMA returns the bus after completing data transfer. Whenever the data transfer finish, then what DMA does? DMA क्या करता है? It return backs the bus. Now a register is used as a byte count. What we are using? Register. Being decrement for each byte transfer, and upon the byte count reaching 0, the DMA will release the bus. See, what we are discussing in the bus transfer is that इस केस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि हम एक रजिस्टर यूज़ करते हैं जो डिक्रीमेंट फॉर्म में काउंटिंग शुरू करता है, राइट. हर बाइट के लिए इट विल स्टार्ट फ्रॉम 9 to 0. फॉर एग्जाम्पल 9 से शुरू हुआ और 0 तक पहुंचने तक इट विल कीप ऑन डिक्रीमेंटिंग. So we are actually using a register which is used as a byte count and which take place in the decrement order, not in the increment order, in the decrement order. And as soon as it reaches the 0, what does the DMA? What does DMAC do? जो हमारा DMA कंट्रोल है वो क्या करता है? It release the bus. So that's what the bus transfer is all about. हम bus transfer में यही देखेंगे कि once the data transfer is finish and what DMAC do? It return back the bus. जैसे ही हमारा डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, DMAC जो है वो बस को रिलीज़ कर देता है. और ये हमें कैसे पता कर चलेगा कि हमारा डेटा ट्रांसफ़र ख़त्म हो गया? उसके लिए वी आर यूजिंग रजिस्टर, और रजिस्टर डू द बाइट काउंट. और ये बाइट काउंट किस ऑर्डर में करता है? डिक्रीमेंट ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल 9 से 0, सपोज हमने वी वांट टू ट्रांसफ़र सम डेटा, राइट. तो व्हाट हैपन्स, DMAC ने क्या किया? बस लिया, बस की रिक्वेस्ट भेजा, बस मिला उसे. बस मिलने के बाद उसने क्या किया? एक रजिस्टर स्टार्ट किया जिसमें वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में फॉर एग्जांपल से 9 से शुरू किया, और जैसे ही 0 पे वो पहुंच गया, देन इट केम टू नो कि ओके फाइन, नाउ द डेटा ट्रांसफ़र इज फिनिश. एंड एज सून एज इट रीचेस टू द काउंट 0, व्हाट DMAC डू? इट रिलीजेस द बस. So this is what the burst transfer is all about, right? Now when the DMAC operate in the burst mode, the CPU is halt for a duration of data transfer. Abhi what these people are trying to say you, or you have to understand in this point, is that जब भी DMA controller burst mode में काम कर रहा होता है, whenever the DMAC controller is working in a burst mode, then the CPU is put at the halt, right? For what duration? As long as the data transfer is taking place. In case of burst transfer क्या होता है? CPU को हम halt कर देते हैं. CPU will not be working at that moment जब तक कि हमारा data transfer work कर रहा है, right? So we'll see what are the steps that are involved in it. First of all, bus grant request time. सबसे पहले क्या करेंगे? हम बस को रिक्वेस्ट टाइम भेजेंगे. द ट्रांसफर द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा एट द ट्रांसफर रेट. व्हाट इट डूज? इट ट्रांसफर्स द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा एट द ट्रांसफर रेट ऑफ दिस डिवाइस. वट एवर द डिवाइस रेट इज देयर, इट सेंड्स द डेटा एट दैट रेट, राइट. दिस इज क्लियर. नाउ what happens after that? Once it is done, right, once it is done, then what happens? We'll see what is the second स्टेप दैट इज़ इंक्लूड. सबसे पहले DMAC ने हमारा देखा, क्या देखा कि भाई हमने वी हैव टू सेंड द डेटा, और वो अपना बस का रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है. और इसमें क्या होता है? व्हाट इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट फर्स्ट इज द बस ग्रांट रिक्वेस्ट इज बीन सेंड. वंस द बस ग्रांट रिक्वेस्ट इज बीन सेंड, इट ट्रांसफर्स द एंटायर ब्लॉक. क्या करता है ये? पूरे की पूरे ब्लॉक को ट्रांसफ़र करता है, राइट. यू नीड टू, इट ट्रांसफर्स व्हाट? द एंटायर ब्लॉक, राइट.
at the transfer, whatever the device rate transfer rate is, it transfers the entire block at that rate, right? Because device is usually slow than the speed at which the data can be transferred to the CPU. क्योंकि क्या होता है, डिवाइसेस जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं, उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, सो एट विच द डेटा कैन बी ट्रांसफर टू द CPU. क्योंकि डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं CPU में, इसलिए उस वक्त जो CPU की जो डिवाइस की रेट होती है वो बहुत स्लो होती है, तो वो सारा का सारा डेटा एक साथ भेजता है डिवाइस की रेट पे, राइट. थर्ड पॉइंट इज़ दैट रिलीज द कंट्रोल ऑफ बस बैक टू CPU. अब हमने देखा वंस द डेटा ट्रांसफ़र इज़ डन, तो ये क्या करता है, उसकी जो हमारा जो भी वो हमारा जो काउंट था, जो रिक्वेस्ट था, वो वापस से हमारा जो बस है उसको वापस किसको भेज देता है, रिलीज द कंट्रोल ऑफ बस बैक टू द CPU. जब तक डेटा ट्रांसफ़र वाज हैपनिंग तब तक हमने CPU को हॉल्ट पे रखा था, एंड वंस द डेटा ट्रांसफ़र इज़ फिनिश, यू अंडरस्टैंड, जैसे ही डेटा ट्रांसफ़र हमारा फिनिश हुआ, उसने क्या किया, इट सेंड्स इट बैक टू द CPU. रिलीज़ जो कंट्रोल बस का वो होता है, कंट्रोल होता है, वो उसको वापस CPU को दे देता है. सो इफ़ यू हैव टू डिफाइन टोटल टाइम टेकन टू ट्रांसफ़र n byte, how much time will be taken to transfer the n byte, then it's going to be addition of bus grant request time plus memory transfer rate plus bus release time, control time. So how you are going to define total time taken by the transferred n byte, किसी भी n byte को ट्रांसफ़र करने के लिए कितना टाइम लगेगा, it is going to be the summation of bus grant request plus memory transfer rate plus bus release control time, right? This is clear. Now after that we are going to discuss cycling stealing. Now what does cycling stealing? See, an alternative method in which the DMA controller transfer one word at a time, after which it must return control to the buses of CPU, right? इस केस में क्या होता है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव मेथड. हमने बस कंट्रोल में तो क्या किया था, सारा डेटा एक साथ भेजा था, बट इन साइक्लिंग स्टीलिंग what we are using, DMA controller, what DMA controller is doing, it is transferring one word at a time, only one word at a time, right? And after which it return back the control to the buses to the CPU. First one word of is been sent, what is the difference, it sends one word at a time, एक बार में एक वर्ड भेज रहा है, और उसके बाद वो कंट्रोल वापस से जो बसेस का कंट्रोल है उसे CPU को वापस रिटर्न कर रहा है. सो द CPU डिलेट्स ऑपरेशन ओनली फॉर वन मेमोरी साइकिल to allow the direct memory input output transfer to steal one memory cycle. You're getting my point? इसमें क्या हो रहा है, what exactly is happening, CPU डिले, जो CPU का जो डिले होगा ऑपरेशन का, वो वन मेमोरी साइकिल का ही होगा, so that to allow the direct memory input output transfer to steal वन मेमोरी साइकिल, ताकि वो एक मेमोरी साइकिल को स्टील कर सके. सो इट इज़ क्लियर व्हाट इज साइक्लिंग स्टीलिंग. साइक्लिंग स्टीलिंग में क्या हो रहा है, वन वर्ड एट अ टाइम सेंड किया जा रहा है, और हर बार क्या होता है, एक बार वन वर्ड सेंड करने के बाद जो कंट्रोल है इट इज़ ऑफ द बसेस इज इट अगेन बीन सेंड बैक टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है क्या करता है, डिले करता है अपने ऑपरेशन को सिर्फ वन मेमोरी साइकिल तक के लिए, ताकि जो डायरेक्ट हमारी मेमोरी है, डायरेक्ट मेमोरी इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र है, वो एक मेमोरी साइकिल का उसको टाइम मिल जाए. सो दिस इज़ क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन टू इट. कौन कौन से स्टेप्स है जो इसमें इन्वॉल्व है. फर्स्ट, बफर द बाइट इन टू द बफर. हम सबसे पहले बफर करेंगे बाइट को बफर के अंदर. इन्फॉर्म द CPU. सेकेंड स्टेप, वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म द CPU दैट द डिवाइस हैज़ वन बाइट टू ट्रांसफर, राइट. सो बस ग्रांट रिक्वेस्ट, दैट इज इट हैज़ ओनली वन बाइट ट्रांसफर. It is going to inform to the central processing unit that device has only one byte to transfer. हमारे डिवाइस के पास सिर्फ एक ही बाइट है ट्रांसफ़र करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन CPU को दे देता है. थर्ड पॉइंट में what exactly it is doing is transfer the byte, right? And how, at what speed it is going to transfer the byte? The speed, it is equivalent to the speed of the bus. Whatever the system bus speed will be there, it is going to transfer that byte in that speed only, right? जो भी बस का स्पीड होगी वही उसकी ट्रांसफ़र रेट होगी, right? After that, what it's going to do? Release the control of the bus back to the CPU. Obviously, when the work is being done, it is given back to the CPU. जो हमारी बस थी, हमने हमारा डेटा ट्रांसफ़र का काम कर लिया, then we are going to revert it back to CPU. So before moving on a transfer rate of a byte of data, device perform one step again, so that the bus isn't tied up, right? So the bus is not hold. In order to undo the hold of a bus, what they are doing, the transfer won't stop. won't depend upon the transfer rate of the device. वो उसकी ट्रांसफ़र रेट पे डिपेंड नहीं करेगा. सो फॉर वन बाइट ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ डेटा, टाइम टेकन बाय द यूजिंग साइक्लिंग स्टीलिंग मोड इज T, राइट. सो दिस इज साइक्लिंग मोड इज क्लियर टू यू.
right? So if we have to find out what is going to be the cycling stealing mode rate, it is going to be equivalent to the time required by the bus grant plus one bus cycle to transfer the data plus time required to release the bus, right? And it's going to be n into t. What is t? T is the stealing mode, right? This is clear to you? So in cycling stealing mode, we always follow pipeline concept. What type of concept it is been used? Pipelining concept is being used, and that's when one byte is getting transferred, then the device is parallel preparing the next byte. एक बार में हमारा क्या हो रहा है, इसमें हम पाइपलाइन का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं साइक्लिंग स्टीलिंग में. क्यों? जब तक कि एक बाइट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है तो डिवाइस क्या कर रहा है, पैरेलली उसके पैरेलली वो क्या कर रहा है, दूसरी बाइट को प्रिपेयर कर रहा है. सो इट इज़ एक्चुअली व्हाट, इट्स अ पाइपलाइनिंग कंसेप्ट. भाई एक ट्रांसफ़र हो रहा है एंड सेकेंड को हम प्रिपेयर कर रहे हैं पैरेलली, उसकी जिस पास बाजू में हम नेक्स्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं जो बाइट जो ट्रांसफ़र हमें करनी है. सो व्हाट टाइप ऑफ कंसेप्ट इट इज़ पाइपलाइनिंग कंसेप्ट. सो साइक्लिंग स्टीलिंग मोड कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, पाइपलाइनिंग कंसेप्ट. सो द फ्रैक्शन ऑफ CPU टाइम टू द डेटा ट्रांसफर टाइम इफ आस्क्ड, then cycling stealing mode is used, right? This is clear. Now we are going to see interleaved mode. Now what interleaved mode is all about? See, in this technique the DMA controller takes over the system bus when the microprocessor is not using. जब भी microprocessor is not using that bus, वो क्या करता है, DMA controller microprocessor से बस को ले लेता है, system बस को ले लेता है. And an alternate half cycle, right? हाफ साइकिल DMA प्लस हाफ साइकिल प्रोसेसर होता है. तो वेन एवर इट इज़ नॉट इन यूज़, जब भी हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको यूज़ नहीं कर रहा है, तो व्हाट हैपन इन दिस केस, इट टेक द बस फ्रॉम सिस्टम बस. हु टेक्स इट? DMA कंट्रोलर. DMA कंट्रोलर टेक द सिस्टम बस फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर. और इसमें क्या होता है, एक ऑल्टरनेट हाफ साइकिल होती है, दैट इज़ हाफ साइकिल ऑफ DMA प्लस हाफ साइकिल ऑफ processor, right? This is clear. So we have discussed the three modes. All the three modes are clear to you. If you have any problem, please feel free to ask me. Thank you.